channel. I've started this new video regarding the chapters of Lakshmikant for Indian polity. So in this video I will go through chapter number 1 of Lakshmikant. So the chapter number 1, I will go through all the chapters of this book page by page, going through each and every topic clearly. So by this means the topic would be cleared and we can revise our chapter so easily. So let's start. So the first chapter is historical background. It is the historical background of Indian polity, how it started. So when we talk about the historical background, it comes to the colonial era. So colonial era introduced actually the political how we got the acts, regulations and all. So around 1600 the British came to India in the form of East India Company. So we need to remember that around 1600 British came to India in the form of traders. So let me just select the highlighter so that I can highlight. Yeah. So around 1600 Britishers came to India as East India Company as traders. So they got the exclusive rights to trade in India, and it was granted by Queen Elizabeth I. Around 1765, British the company, the East India Company, got the trading rights called the Diwani rights, the rights over the revenue and civil justice of Bengal, Bihar and Orissa. So this started their career as the territorial power. उनको territory पे, like they got the power over territory. Then 1858 में Sepoy mutiny हुई. In the wake of Sepoy mutiny, British Crown ने control कर लिया. They took the direct responsibility of the governance. British Crown took the direct responsibility for the governance after Sepoy mutiny. So ये पूरा रूल कब तक चला? टिल 15 अगस्त 1947, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली. इंडिपेंडेंस के साथ जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, we needed a constitution for it. Then Constituent Assembly form हुई to create a constitution in 1946 for this purpose, and it was 26 January 1950 when the constitution came into being. However, various features of the Indian constitution and polity have their roots in the British rule. British rule के time पे ही roots जड़ें आ गई थी. So there were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of the government and administration. So these events, ये जो events हुए, इन्होंने काफ़ी influence किया हमारे constitution को और हमारी polity को. So अब हम आगे अपना historical background chronological order में देखेंगे. We can divide it in two parts. One was company rule, जब तक हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, and second is the crown rule, जब हमें जब डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. So now we will look to the company rule, जो कि स्टार्ट हुआ 1773 से लेकर 1858 पर वो खत्म हुआ. So company rule में, like what acts we need to read about is Company Rule Regulating Act of 1773, Pitt's Act of 1784, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853. So these four acts we need to learn, like we need to read about. Say Regulating Act of 1773, when company rule came into existence. Then Pitt's India Act of 1784. Then it's 1833 Charter Act, 1853 Charter Act. So first we will go through the Regulating Act of 1773. It's this.
Okay, so this act of great constitutional importance was of great constitutional importance as it was the first step of the British government. ये इसका constitutional importance काफ़ी था because this was ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमें कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, लाइक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. सो वो इस तरह से they were able to control. It recognized for the first time political और administrative functions कंपनी के recognize किए गए. फाउंडेशन ले किया फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया. इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स वी विल सी. इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट कर दिया. एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट करी ऑफ 4 members to assist them. First such Governor General was Lord Warren Hastings. It made the Governor of Bombay and Madras Presidency subordinate to the Governor General of Bengal. इन्होंने जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के थे उन्हें बंगाल से नीचे कर दिया. सो सबऑर्डिनेट कर दिया. ये 3 इंडिपेंडेंसी, पहले जो ये जितने भी 3 प्रेसिडेंसीज थे ये सब इंडिपेंडेंट थे, बट नाउ गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू हिम. सो इससे और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट भी हुआ. सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा 1774. मतलब इट वाज नॉट एज ह्यूज एज सुप्रीम कोर्ट इज राइट नाउ, बट उस टाइम पे it was created. 1 chief justice and 3 other judges were there. It prohibited कंपनी के किसी भी सर्वेंट को प्रोहिबिट करते थे कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने से, कोई भी प्रेजेंट्स और ब्राइब्स लेने से नेटिव से. So it strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors, governing body of the company, to report its revenue, civil and military affairs. So ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रेंथन किया. कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वायर कर लिया जो कि रिपोर्ट करते थे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इंडिया के ब्रिटिश क्राउन को. सो देन नाउ इट्स अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. उसके बाद वी विल गो थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. आई थिंक दिस अमेंडिंग एक्ट इज एडेड इन द न्यू एडिशन. सो इन द बिट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द, जो कि 1773 के डिफेक्ट्स थे, वो रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 किया गया. इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया. दिस वाज आल्सो कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट. इसके फीचर्स हैं, इसने it exempted the governor general and the council from jurisdiction of the supreme court for the acts done by them in their official capacity. Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the supreme court. supreme court के jurisdiction से कुछ को exemption मिला, जैसे कि गवर्नर जनरल को और उनके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से exemption मिल गया, लाइक वो उनके jurisdiction से परे हो गए. और सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जाम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के सर्वेंट्स को भी एग्जाम्प्ट कर दिया फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द ऑफिशियल एक्शंस. उनके ऑफिशियल एक्शंस के लिए, ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए एग्जाम्प्ट किया गया. इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स. रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड किया गया और मैटर्स जो भी रेवेन्यू के कलेक्शन से अराइज होते थे उनको एक्सक्लूड किया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से. It provided Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendants. Like Hindus were to be tried according to Hindu law or Muslims ko according to Mohammedan law. It laid down the appeals from the provincial courts could be taken to the governor general and council and not to the supreme court. जो भी provincial courts की appeals थी वो governor general and councils तक जाएंगी, supreme court तक नहीं जाएंगी. It empowered the governor general and council to frame the regulations of these provincial courts and councils. So this was just a correcting act. Now another important act is Pitt's India Act of 1984.
So the features of the Pitt's India Act of it's 1784. Pitt's India Act of 1784. The features are, it distinguished, इसने अलग अलग कर दिया कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के. कंपनी जो भी कॉमर्शियल फंक्शंस थे वो ट्रेड वगैरह अलग, एंड देन पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ किया गया टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स, कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करें, बट एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बना दिया गया political affairs के लिए. So court of directors were to manage commercial affairs and board of control was to manage political affairs. Thus it established a system of, इस तरह से डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टैब्लिश हुआ. बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया टू सुपरवाइज. बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो डायरेक्ट सुपरवाइज कर सकते थे और डायरेक्ट कर सकते थे सारे ऑपरेशन सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के और रेवेन्यूज के जो भी ब्रिटिश पोजीशन के अंदर आती थी इन इंडिया. Thus the act was significant for two reasons. Like, it was significant for two reasons. First, company's territory in India were for the first time called British possessions. और second था कि British government was given the supreme control over the company affairs. That is the reason board of control और ये सब court of directors सब अलग अलग हो गया. So this was important because it was the first time British position कहा गया कंपनी के टेरिटरीज को. नाउ एक्ट ऑफ 1786, इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. उन्होंने 2 डिमांड्स रखी इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए. पहला, he should be given power to override the decision of the councils, और दूसरा कि वो कमांडर इन चीफ भी होंगे. इस तरह से एक्ट ऑफ 1786 भी एनैक्ट किया गया. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देन इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1853. So we will look to the Charter Act of 1793. Features थे, extended the overriding power given to the Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governors of presidencies. It gave governor general more powers and control over the government to subordinate presidencies of Bombay and Madras. गवर्नर जनरल को मोर पावर्स दी गई, कंट्रोल दिया गया गवर्नमेंट के ऊपर. ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया कंपनी के 20 पीरियड्स के लिए, 20 इयर्स के लिए. सो कमांडर it provided the commander-in-chief was not to be a member of Governor General's Council unless he was so appointed. It laid down the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid of the Indian revenue. Charter Act of 1813. The features of this act are like 1813 इस act के features हैं. Let me take this. Yeah. ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश किया गया कंपनी में, बिकॉज जितने भी और भी ट्रेडर्स थे, दे वांटेड टू कम टू इंडिया, दे वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया. सो इंडिया वाज अ ह्यूज मार्केट. सो इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल द अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स. सो इट कंटिन्यूड मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी. सिर्फ टी के साथ जो ट्रेड होता था और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसमें सिर्फ कंपनी की मोनोपोली को रखा गया, बाकी सब में सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स को अलाउ किया गया. asserted the sovereignty of ब्रिटिश क्राउन का ओवर द कंपनी टेरिटरी. क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो इंडिया आए और लोगों को एनलाइटन करें. वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया गया among the inhabitants of the British territories in India.
लोकल गवर्नमेंट्स को ऑथराइज किया गया कि वो टैक्स लगा सके, टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स. They could also punish the persons who are not paying the taxes. Now we will look the Charter Act of 1833. Just give me a moment. Charter Act of 1833. It was actually the centralization started. Centralization started when started from the Regulating Act of 1773. So this was the Charter Act of 1833 was the final step for the centralization. अभी आगे decentralization भी होगा. So it is the final step of centralization. इसके फीचर्स हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया. सारे जो पावर्स थे, सिविल और मिलिट्री पावर्स, सब उसमें वो वेस्टेड इन हिम. और thus the act created for the first time government of India having authority over the entire territorial area. पूरे territorial area पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किया गया. लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के. So it deprived governor of Bombay and Madras of legislative power. उनके डिप्राइव कर लिए गए, लेजिस्लेटिव पावर उनसे ले लिए गए. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन, उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिए गए पूरे, मतलब फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया. लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड, पहले जितने भी थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, बट अब जो भी इसमें लॉज बने गए उन्हें एक्ट्स कहा गया. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटीज थे कॉमर्शियल, एज अ कॉमर्शियल बॉडी, दे वर एंडेड. एंड अब ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. इट प्रोवाइडेड कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर, अब जितने भी कंपनी के टेरिटरी थे वो दे वर लाइक इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी और हर मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to it actually attempted to give a open competition to give a system of open competition for the selection of the civil servants. बट फिर उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. Now we will look to the Charter Act of 1853. So this was actually the last series of the Charter Acts passed between last series from 1793 to 1853. It was actually a constitutional landmark. The features of this acts were as follows. It separated for the first time it separated legislative and executive functions of the Governor General Council. Provided 6 new members were provided called legislative councillors of the council. In other words, it established separate गवर्नर जनरल की एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई, विच केम टू बी नोन, बाद में वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी गई. दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज द मिनी पार्लियामेंट, एक मिनी पार्लियामेंट की तरह हो गया था, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. Thus, legislation for the first time was treated as the special function of the government, requiring special machinery and special process. Introduced open competition system, selection and recruitment of the civil servants. Covenanted civil services were thrown open to the Indians also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee of Indian Civil Service, was appointed in 1854. Company rule को extend किया गया and allowed to retain its Indian position on the trust of British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charters, clear indication था कि कंपनी रूल कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, जैसे ही पार्लियामेंट को पसंद आया they will terminate the company rule. It introduced the first time local representation in the Indian local representation, like पहली बार कहा गया कि locals जो Indians हैं वो represent कर सकते हैं Indian Legislative Council में. जो भी 6 new members थे Legislative Council के, 4 members were appointed by the local
governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. So this was the company rule. तो लेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंपनी रूल को. 1773 से 1858 तक हुआ. इसमें क्या क्या एक्ट्स थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा 1773 का. ये कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज लाइक ऑफ अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस. कंट्रोल ये जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उन्हें कंट्रोल और रेगुलेट करने में पहला स्टेप था. और ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कंपनी के पहली बार रिकॉग्नाइज किए गए थे इसमें. और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन था ये. लाइक इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन. सो इसमें लाइक पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे. सो फिर अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. एंड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू हिम. और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 जजेस थे. और कंपनी के सर्वेंट्स को प्रोहिबिट किया गया फ्रॉम टेकिंग bribes, presents from the locals. और कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एस्टैब्लिश किए गए. दे नीड टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया. नाउ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इट वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट. इसमें गवर्नर जनरल को और उनके काउंसिल को एग्जाम किया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से. और जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्हें एक्सेम्प्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से. रेवेन्यू मैटर्स जो भी थे और रेवेन्यू के कलेक्शन से जो भी मैटर्स राइज हो रहे थे उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया. और इट वाज लाइक जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन था वो जो भी कलकत्ता में लोग रह रहे थे, कलकत्ता में उन लोगों पे था. सो कोर्ट को मतलब इट रिक्वायर्ड कोर्ट टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ. उसके अकॉर्डिंग उन पे जस्टिस किया जाए. प्रोविंशियल कोर्ट्स का ये इट लेड डाउन दैट प्रोविंशियल कोर्ट जो भी थे उनका जो भी मैटर होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल तक ले जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाया जाएगा. गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे वो रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते थे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए. नाउ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस जो भी थे कंपनी के उनको अलग अलग कर दिया गया. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए फॉर दी कमर्शियल अफेयर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए फॉर दी पॉलिटिकल अफेयर्स. अब यहाँ पे डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हो गया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी था वो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के जो भी ऑपरेशन थे उनको डायरेक्ट कर सकते थे, सुपरवाइज कर सकते थे. और जितने भी रेवेन्यूज पोजेशन ब्रिटिश पोजेशन के वो सब. सो पहली बार लाइक दिस एक्ट इज सो सिग्निफिकेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी के जितने भी टेरिटरीज थे उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन कहा गया. और सुप्रीम कोर्ट ओवर लाइक सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल बन गया कंपनी के अफेयर्स पर. एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. उन्होंने ये पोस्ट एक्सेप्ट करने के लिए 2 डिमांड्स रखी. पहला कि उनको वो पावर दी जाए टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल स्पेशल केसेस में. दूसरा वो कमांडर इन चीफ होंगे. इन दोनों को एनैक्ट करके एक्सेप्ट करके ये एक्ट पास किया गया. चार्टर एक्ट ऑफ 1793. इसके फीचर्स थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनके जो काउंसिल के ओवरराइडिंग पावर्स थे वो एक्सटेंड करे गए. गवर्नर जनरल को और मोर पावर्स दिए गए गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंट. नीचे जो बॉम्बे और मद्रास वाले थे उनको कंट्रोल करने के लिए. ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया फॉर मोर 20 years. और इंडियन जो रेवेन्यू है इट लेड डाउन द मेंबर्स पेड आउट ऑफ, जितना भी मतलब मेंबर्स ऑफ दी जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और उनके स्टाफ वो इंडियन रेवेन्यू से ही पे आउट करे जाएंगे. चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853. 1813 में जो फीचर्स थे, ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश किया गया. बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी अलाउ किया गया टू ट्रेड इन इंडिया. बस मोनोपोली जो कंपनी की बनाएगी वो सिर्फ ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना से बनाएगी. सोवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की assert like it was asserted. and Christian missionaries को अलाउ किया गया इंडिया में to
फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग पीपल। वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया और लोकल गवर्नमेंट्स जो थे इंडिया के, उन लोकल गवर्नमेंट्स जो थे वो टैक्सेस इम्पोज कर सकते थे पीपल पे और दे कैन पनिश पीपल फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। 1833 में दिस वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फाइनल स्टेप्स ओवर सेंट्रलाइजेशन। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उनके साथ उनके लाइक ऑल द सिविल और मिलिट्री पावर्स वर vested in him. First Governor General of Bengal India was Lord William Bentinck. जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, पूरे एंटायर इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की। इससे पहले जो भी लॉज थे वो रेगुलेशंस कहलाते थे, बट अब जो भी लॉज इस एक्ट के अंदर करे गए उनको एक्ट्स कहा गया। प्योरली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का बना दिया गया। और लाइक देयर वाज एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज एग्जाम सिलेक्शन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, बट फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन की वजह से ये नहीं हो पाया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया। गवर्नर जनरल के लिए अलग से 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, काउंसिलर्स करे गए, उसे गवर्नर जनरल का गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। फिर बाद में इट केम टू बी लाइक इट बिकेम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करे जाते थे जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में किए जाते थे। इस पे और ओपन कंपटीशन एग्जाम कर दिया गया, सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। इसमें इंडियंस को भी अलाउ किया गया। मैकॉले कमिटी वाज क्रिएटेड फॉर दिस इन 1854। कंपनी रूल को टर्म लाइक सारे जितने भी टेरिटरीज थे वो सब वाज ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। सो अब ये नहीं पता चला कि लाइक कितने पीरियड के लिए, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो इससे क्लियर था कि कंपनी रूल जो था वो की टर्मिनेट किया जा सकता है किसी भी मोमेंट पे। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक अलग से लाइक लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसमें मिला। 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। So this is going to, like this was the company rule. I will go through the crown rule in the next video. So let's end the video here. Thank you so much.